مسیح یسوع میں پیارے عزیزوں، میں خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں نے جو ایک سلسلہ مبارکبادیوں کا شروع کیا ہے، آج اس کی یہ 5ویں مبارکبادی ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے سیکھیں گے۔ روح پاک سے التجا ہے کہ وہ میری اور آپ کی مدد فرمائے تاکہ ہم برکت پا سکیں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور آج 7ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ان پر رحم کیا جائے گا۔ تو آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے جو مبارکبادیاں نکلیں یا انہوں نے فرمایا کہ مبارک کون کون ہو سکتے ہیں، آج وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ جو رحم دل ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پر رحم کیا جائے گا، اور جو رحم دل ہیں وہ مبارک بھی کہلائیں گے۔ رحم دل کا مطلب ہے رقیق القلب، نرم دل، شفیق، مہربان، ہمدرد۔ اور رقیق القلب کا مطلب ہے جس کا جلد دل بھر آئے، ترس کھانے والا، جلد پسیجنے والا، ملائم دل۔ دوسرا سموئیل اور اس کی 22ویں باب کی 26 اور 27ویں آیت میں یوں ذکر ہے کہ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ مبارک ٹھہریں تو اپنے اندر کی سختی کو نکالنا ہوگا۔ ہمیں یہ تعلیم تو دی گئی ہے کہ ہم مبارک کیسے ٹھہریں گے کہ جب ہم رحم دل ہوں گے، اور پھر اس کے اوپر یہ برکت ہے کہ ہم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر ہم کسی پر رحم نہ کریں گے، اگر ہم نرم دل نہ ہوں گے، اگر ہم مہربان نہ ہوں گے، اگر ہم درد نہ ہوں گے، تو نہ تو ہم مبارک کہلائیں گے اور نہ ہی ہم پر رحم کیا جائے گا۔ اور رحم دلی کا جو ضد ہے وہ ہے سخت دلی۔ تو اگر ہم اپنے کسی ساتھی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی نزدیکی کو اگر ہم معاف نہیں کرتے، ہم اس پر رحم نہیں کرتے، ہمارے اندر سخت دلی قائم رہتی ہے، ہم کبھی بھی مبارک نہیں ٹھہر سکتے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 46واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو میری سنو۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو میری سنو۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں، یا خداوند یسوع مسیح ہمیں مبارک ٹھہرانا چاہتا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوں کہ تم مبارک ہو، تو ہمیں سخت دلی کو دور کرنا ہوگا، اور جو لکھا ہے کہ صداقت سے دور ہو، ہمیں صداقت کو جاننا ہوگا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی یسوع ہے۔ جب تک ہم یسوع کو نہ جانیں، جب تک ہم یسوع کو نہ پہچانیں، جب تک ہم یسوع کے نزدیک نہ ہوں، جب تک اپنے گناہوں کا اقرار ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے سامنے نہ کریں، تو ہم رحم دل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اپنا وہ مزاج ہمارے اندر
रख देता है जो वो कहता है कि मुझसे सीखो। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और उसका मिजाज क्या था, कैसा था? अभी अपने पिछले दिनों ईद क़यामतुल मसीह मनाया और उसका मिजाज ये था, इतना नरम था कि उसने बनी नौ इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और हम अपनी सख्त दिली की वजह से अपने भाई को माफ़ नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ों, दुआए रुबानी में भी हमेशा हम कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को या कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर या कर्ज हमें माफ़ कर। तो यहाँ भी यही चीज़ है जो इस आयत में है कि रहम दिल हो तो रहम किया जाएगा। और यहाँ भी यह है कि कसूर माफ़ करोगे तो कसूर माफ़ होंगे। जब कसूर माफ़ होंगे, जब हम किसी के कसूर माफ़ करेंगे, जब हम किसी पर रहम दिली करेंगे, तब हम लोग मुबारक ठहरेंगे। अगर हम अपनी सख्त दिली छोड़ेंगे तभी तो हम रहम दिल कहलाएंगे। जब हम रहम दिल हो जाएंगे तब ही हम पर भी रहम किया जाएगा और हम मुबारक कहलाएंगे। हम बनी नौ इंसान की सख्त दिली ये भी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं लेकिन सुनकर उस पर अमल नहीं करते तो अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। जब हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं तो हम मुर्दा कहलाते हैं। जिस तरह बागे अदन में हव्वा और आदम ने अपने दिल को सख्त किया और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस दिन ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। यानी कि रूहानी तौर पर जब हम खुदावंद के कलाम को सुनकर अमल नहीं करते तो हम भी रूहानी तौर पर मर जाते हैं और मुर्दा कहलाते हैं। मेरे अजीज़ों, रोमियो 8वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान। अगर हम मुबारक कहलवाना चाहते हैं या खुदा हमें कहे कि तुम मुबारक हो, तो हमें अपनी नियत पर गौर करना है। क्योंकि आदम और हवा उसी नियत में चले गए थे जो उनकी ज़िंदगी में नाफरमानी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी नियत में नाफरमानी को रखा और खुदा से जुदाई हो गई। और फिर इंसान बढ़ते चले गए, गुनाह बढ़ता चला गया और खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा और फिर उसने हमारे लिए अपनी जान दी। पहला पतरस 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, और नियत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही चाल चलन पर लान तान करते हैं। यह आयत हमारे दिलों को चीर देने वाली आयत है कि हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, लेकिन जब दुनिया हमारे चाल चलन को देखती है, हमारे अहद व पैमान को देखती है, हमारे वादों को देखती है, और जब हम उन पर पूरा नहीं उतरते तो यहाँ पर लिखा है कि मसीही नेक चाल चलन पर लोग लान तान करते हैं। हम अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीह के मानने वाले हैं, लेकिन ना तो हमारे दिल में रहमदिली है, ना हमारे दिलों में सच्चाई है, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपने से दूर कर दिया है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने से दूर कर देंगे तो हम कभी मुबारक नहीं कहलाए जा सकते। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में रख लेंगे तब वो हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ करेगा, हमारे अंदर रहमदिली भी पैदा करेगा, और हम पर जब हम दूसरों पर रहम करेंगे तो हम पर रहम किया जाएगा। मेरे अजीज़ों, सवाल ये है, क्या हम वाकई रहमदिल हैं? क्या हम वाकई मुबारक
मुबारक हैं, या क्या हम वाकई हम पर रहम हुआ है। मेरे अजीज़ों, अगर हम मुबारक ठहरना चाहते हैं तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपने चाल चलन को दुरुस्त करें और मुबारक कहलाने के लिए और मुबारकबादियों में शामिल होने के लिए अपने आप को रहम दिली की तरफ राग़िब करें। अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहें, माफ़ फरमाएं तो माफ़ किए जाएंगे। अगर हम माफ़ नहीं करते तो माफ़ी हमें हमारे लिए नहीं है। अगर हम रहम दिली इस्तेमाल नहीं करते, हम अगर किसी पर रहम नहीं करते तो हम पर भी रहम नहीं किया जाएगा। सामरी ने भी ऐसा ही किया था। नेक सामरी ने, उसने रहम किया, उस पर रहम किया गया। आज हम भी मेरे अजीज़ों खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें, और अगर हम रहम दिल अपने दिल अंदर रहम दिल पैदा करेंगे तो हम पर रहम किया जाएगा। जब हम पर रहम किया जाएगा तो हम लोग भी मुबारक कहलाए जाएंगे। मुबारक हैं वो लोग जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।